ٹھیک ہے. ہمارا جو آج کا نیا لیسن ہے، ٹاپک ہے، تو اس کا عنوان جو ہے وہ تاج محل ہے. بچوں، آپ نے ضرور تاج محل کے بارے میں سنا ہوگا یا بہت سارے بچوں نے ذاتی طور پر اس کو دیکھا بھی ہوگا. تو یہ مغل بادشاہوں میں جو مغل بادشاہ تھے جنہوں نے ہندوستان پر بہت سالوں تک حکومت کی ہے، اور انہی مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ جہاں. تو اس نے یہ تاج محل جیسی خوبصورت عمارت بنائی. یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے تصور کیا جاتا ہے. تو یہ جو تاج محل عمارت ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں لکھا گیا ہے، اس لیسن میں لکھا گیا ہے، اور اس لیسن کا لکھنے والا ہے پروفیسر مسعود حسن رضوی، ادیب. اس کا تخلص آپ کو معلوم ہے کہ یہ شاعر لوگ یا جو ادیب لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے نام کے آخر میں ایک چھوٹا سا نام جوڑ دیتے ہیں جس کو بولتے ہیں تخلص. تو اس ادیب نے یہ تاج محل لیسن جو آپ کی کتاب میں ہے اس کو لکھا ہے. اور تاج محل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شاہ جہاں جو مغل بادشاہوں میں ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، جو اکبر بادشاہ کا پوتا تھا، تو اس نے یہ خوبصورت عمارت بنائی. اس نے نہ صرف یہی ایک خوبصورت عمارت بنائی بلکہ اس نے بہت ساری عمارتیں بنائی ہیں، بہت ساری خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عمارت ہے جو آج بھی دنیا میں خوبصورت عمارتوں میں تصور کی جاتی ہے، تو ان میں یہ تاج محل بھی ایک خوبصورت عمارت ہے. تو یہ تاج محل کے بارے میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ یہ اس شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی جس کے ساتھ وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی یاد میں اس کی فرمائش پر بنا دیا. تو اس تاج محل عمارت کے بارے میں مختلف قصے کچھ لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ اس کو کوئی ہسٹری پروو نہیں کر سکی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممتاز محل نے خواب میں اس قسم کی خوبصورت عمارت دیکھی تھی، تو پھر اس نے اپنے شوہر یعنی کہ شاہ جہاں سے ایسی عمارت بنوانے کے لیے کہہ دیا، تو شاہ جہاں نے اس کی یہ فرمائش پوری کی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ممتاز محل کا جب آخری وقت آ گیا، اس کو قریب المرگ تھی وہ، تو اس نے اپنے بادشاہ یعنی کہ اپنے شوہر شاہ جہاں سے یہ فرمائش کی کہ میرا مقبرہ ایسا بنوا لینا کہ میرا نام، میری شہرت جو ہے یہ رہتی دنیا تک رہے گی. تو کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے، تو یہ سب کچھ اس لیسن میں لکھا گیا ہے. تو چلو اب ہم لیسن پر آتے ہیں. ہندوستان میں بڑے بڑے مغل بادشاہ گزرے ہیں، مگر شاہ جہاں کی شان شوکت کو کوئی نہیں پہنچتا. یعنی کہ ہندوستان جو ہے اس پر بہت سارے مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے، اور ان مغل بادشاہوں میں سب سے پہلا مغل بادشاہ جو ہے، جو آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ ان کا جو فاؤنڈر تھا، ان کا جو بانی تھا مغلوں کا، وہ تھا بابر. تو بابر کے بعد بہت سارے مغل بادشاہ انہوں نے اس ہندوستان پر حکومت کی. تو ان بڑے مغل بادشاہوں میں ایک بڑا مغل بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شاہ جہاں تھا، اور اس کی شان شوکت، اس کی اس عظمت کو کوئی نہیں پہنچتا. یعنی کہ وہ کتنا عظیم بادشاہ تھا. جو مغل بادشاہوں میں یا باقی بادشاہوں میں جو عظیم بادشاہ گزرے ہیں، ان عظیم بادشاہوں میں یہ شاہ جہاں بھی ایک عظیم بادشاہ تھا. یہ اکبر کا پوتا تھا. پوتا کا مطلب ہو گیا بیٹے کا بیٹا. یعنی کہ جو اکبر تھا، اکبر بادشاہ،
कोई ये ना समझे कि किसी का एंकल होगा अकबर, वो कहेगा अकबर, नहीं, बल्कि ये जो मुगल बादशाह है उनमें जो सबसे बड़ा बादशाह गुजरा है वो अकबर था। तो अकबर के बारे में भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसी बड़े बादशाह का, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट, तो उसका पोता था ये शाहजहां। अपने बाप जहांगीर के इंतकाल के बाद 1628 में तख्त पर बैठा। तो ये जो शाहजहां था, जो उसका बाप था जहांगीर, यानी कि हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे अकबर बादशाह का बेटा था जहांगीर और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। और उनमें एक रस्म चली आ रही थी कि जब बाप मरता था तो फिर उसका बेटा तख्त पर आता था। यानी कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि अकबर जो सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। तो इसी तरह जब ये पिछली हुकूमतें थी, पुराने ज़माने की हुकूमतें थी, तो ये बाप जब मर जाता था, वो तख्त से दस्तबरदार होता था, तो फिर उसका बेटा तख्त पर बिठाया जाता था, यानी कि उसके बेटे को हुकूमत दी जाती थी। तो जब जहांगीर का इंतकाल हो गया, इंतकाल का मतलब हो गया वफात पाना, या इसका दूसरा हम कहेंगे विसाल, मरना, वफात पाना या विसाल। तो जब जहांगीर का इंतकाल हो गया, जब उसकी वफात हो गई, और कब उसकी वफात हो गई? 1628 में। तो वफात होने के साथ ही उसका बेटा जहांगीर तख्त पर बैठा, यानी कि जहांगीर बादशाह बन गया। इसको इमारतों का बहुत शौक था। यूं तो और मुगल बादशाहों ने भी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई थी, मगर शाहजहां इस बात में सबसे बड़ा। तो ये जो शाहजहां था, इसको इमारतें बनाने का बहुत ही शौक था, यानी कि वो शौकीन था इमारतें बनाने का, खूबसूरत इमारतें बनाने का वो शौकीन था। सिर्फ शाहजहां को ही नहीं, बल्कि ये जो सारे मुगल बादशाह थे, उन सबों को अच्छी अच्छी इमारतें बनाने का शौक था। अगर कि ये सभी मुगल बादशाह खूबसूरत और अच्छी अच्छी इमारतें बनाते थे, लेकिन इस मामले में, इस फन में शाहजहां उन सारे मुगल बादशाहों में सबसे आगे बढ़ गया। यानी कि जो खूबसूरत इमारतें शाहजहां ने अपनी दौरे हुकूमत में, अपनी बादशाहत में बनाई, ऐसी खूबसूरत इमारत और किसी मुगल बादशाह ने नहीं बनाई। इसकी बनवाई हुई इमारतों का जवाब रोए जमीन पर मुश्किल से मिलेगा। तो उसने जो इस जमीन पर, रोए जमीन का मतलब है जमीन का फर्श, जमीन का चेहरा, रोए का मतलब हो गया चेहरा। तो इस जमीन पर जो उसने खूबसूरत इमारतें बनाई, तो इस सारे जमीन पर उन जैसी मिसाल मिलना, उस जैसी और किसी इमारत का देखना वो मुश्किल होगा। शाहजहां की बनवाई हुई इमारतों में ताजमहल सबसे उम्दा है। अगरचे शाहजहां ने बहुत सारी खूबसूरत इमारतें बनाई, लेकिन उन सारी इमारतों में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत थी, उसका नाम है ताजमहल। बड़े बड़े सयाहों ने इसको दुनिया के अजायबात में शुमार किया, और जो बड़े बड़े सयाह हैं, जो विजिटर्स हैं, जो उन्होंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया है या जमीन के बहुत सारे हिस्से का सैर किया है, तो कुदरती बात है जिस इंसान ने दुनिया का बहुत सारा सैर किया होगा, चक्कर लगाया होगा, तो उसने दुनिया की अजीब अजीब चीजें देखी होंगी। तो जो ये सयाह लोग हैं, जो ये दुनिया में घूमने वाले लोग हैं, तो उन्होंने दुनिया के बेशुमार अजीब चीजों को देखा। तो उन्होंने इस ताजमहल को देखकर भी इस अजीब चीज को, इस अजीब इमारत को दुनिया के इन अजायबात में शामिल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी तक दुनिया में 7 अजायबात तस्वुर किए जा रहे हैं, और इन 7 अजायबात में ताजमहल भी एक है। बैज़ लोगों का ख्याल है कि दुनिया में इससे अच्छी इमारत कहीं नहीं है, और कुछ लोग इस ताजमहल को इस बात से मंसूब करते हैं, उनकी ये राय है, ख्याल का मतलब हो गया राय, उनका ये ख्याल है, उनका ये मानना है कि अगर तो दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत दुनिया में कहीं नहीं है। ताजमहल के मुतालिक एक किस्सा मशहूर है, पहले उससे सुन लो फिर ताजमहल का हाल सुनो। तो इस ताजमहल के बारे में जो शाहजहां ने खूबसूरत
खूबसूरत इमारत बनवाई। उसके बारे में एक मशहूर सा, एक फेमस सा किस्सा है, एक कहानी है उसके बारे में। तो ये जो राइटर है, ये जो अदीब हैं, तो ये हमें कहते हैं कि पहले उस किस्से को हम सुन ले, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये ताजमहल कैसी खूबसूरत इमारत है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, उसके बनाने वाले कौन थे। शाहजहां को अपनी बीवी मुमताज महल से बहुत मोहब्बत थी। तो ये जो शाहजहां बादशाह था, उसकी बीवी जिसका नाम था मुमताज महल, उसको अपनी इस बीवी से हद से ज्यादा प्यार था। मोहब्बत का मतलब हो गया प्यार। कहते हैं कि एक दिन मुमताज महल सो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शाहजहां की ये बीवी जिसका नाम मुमताज महल था, वो सोई हुई थी। उसने ख्वाब में एक नहायत खूबसूरत इमारत देखी, और जब वो सोई हुई थी तो उसने अपने इस सोने में, अपनी इस सोने की हालत में उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब में उसने क्या देखा कि एक खूबसूरत इमारत थी, हद से ज्यादा खूबसूरत इमारत उसने ख्वाब में देखी। इमारत क्या थी? बिश्त का नमूना थी। ये जो इमारत थी ये कैसी खूबसूरत थी, जैसे कि बिश्त का मतलब हो गया जन्नत, जन्नत का नमूना थी, जन्नत की कोई इमारत थी। आंख खुली तो शौहर से ख्वाब बयान किया, और जब ये नींद से बेदार हो गए, आंख खुली का मतलब हो गया नींद से बेदार होना, क्योंकि ये ख्वाब में देख रही थी खूबसूरत इमारत, उसने ख्वाब में देखी, और जब वो बेदार हो गई, नींद से जाग उठी, तो उसने अपना ये ख्वाब अपने शौहर से, यानी कि बादशाह शाहजहां से उसने ये बयान किया, और कहा कि तुम एक वैसी इमारत बनवा दो। और अपने इस बादशाह से, अपने इस शौहर से, शाहजहां से ये कहा कि जैसी खूबसूरत इमारत मैंने ख्वाब में देखी, तुम भी ऐसी खूबसूरत इमारत बनवा देना मेरे लिए। शाहजहां था इमारतों का दिलदार, और फिर प्यारी बीवी की फरमाइश इसने जवाब दिया कि जो इमारत तुमने ख्वाब में देखी है वो तो खुदा जाने कैसी थी, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी इमारत बनवाए देता हूँ जैसी किसी ने ख्वाब में भी न देखी। तो शाहजहां, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि उसको इमारतें बनाने का तो शौक पहले से ही था, और वो इमारतें बनवाने का शौकीन था। और दूसरी तरफ आप जब उसकी प्यारी बीवी ने, उसकी सबसे प्यार करने वाली बीवी थी, उसने उसकी फरमाइश पूरी की, और उसकी फरमाइश जो उसने इमारत ख्वाब में देखी थी, उसकी फरमाइश पूरी करने की ख्वाहिश की, और अपनी प्यारी बीवी को जवाब दे दिया कि चूंकि तुमने ये इमारत कहाँ देखी? ख्वाब में देखी, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो मेरे सामने नहीं आ सकता है, तो वो तो खुदा ही जाने तुमने कैसी इमारत ख्वाब में देखी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी इमारत बनवाए देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसी खूबसूरत इमारत बनवाता हूँ जैसी किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। यानी कि अगर तुमने अपनी ये खूबसूरत इमारत ख्वाब में देखी, बल्कि मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत इमारत तुम्हारे लिए बना दूंगा, तुम्हारे लिए खड़ा कर दूंगा जैसी खूबसूरत इमारत किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। शाही फरमान मुल्कों में जारी हो गए कि बड़े बड़े इंजीनियर एक ऐसी इमारत का नक्शा तैयार करके बादशाह के हुजूर में पेश किए। तो बादशाह के दरबार से शाही फरमान का मतलब हो गया बादशाही हुक्म। तो बादशाह के दरबार से हुक्म जारी हो गया, और यह हुक्म न सिर्फ हिंदुस्तान तक फैल गया बल्कि सारे दुनिया के मुल्कों तक फैल गया, मुल्कों तक जारी हो गया। और जो उस वक्त के बड़े बड़े इंजीनियर थे उनको कह दिया गया कि तुम एक खूबसूरत नक्शा, एक खूबसूरत इमारत का नक्शा तैयार करके हुजूर के पेश में खड़ा कर दो। यानी कि बादशाह के सामने, बादशाह के दरबार में, शाहजहां के दरबार में तुम ये खूबसूरत नक्शा अपनी अपनी तरह से बादशाह के दरबार में ले आओ, जिससे बेहतर इमारत इसके नजदीक हो ही नहीं सकती। तो जो ये इंजीनियर थे उन्होंने अपनी तरफ से जो उनका सबसे ऊंचा टैलेंट था, अपने बेहतरीन हुनर की मदद से बेहतरीन नक्शे तैयार किए और बादशाह के दरबार में लाए। इंजीनियरों की किस्मत खुल गई, और जो ये इंजीनियर थे,
जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से खूबसूरत इमारतों के नक्शे शाही दरबार में ला खड़ा कर दिए, तो उनकी किस्मत खुल गई। अच्छे से अच्छे नक्शे बनाकर पेश करने लगे और सोने चांदी की जेबें भरने लगे। उन्होंने अच्छे से अच्छे नक्शे बादशाह के दरबार में लाए और बदले में बादशाह उनको बहुत सारी दौलत देता था, सोने चांदी देता था, रुपया पैसा देता था, यानी कि उनको अमीर बना देता था। मगर मुमताज महल की आंखों में तो वही ख्वाब वाली इमारत फिर रही थी। लेकिन ये जो मुमताज महल थी, अगरचे जो बहुत ही काबिल और ज़हीन इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी तरह से खूबसूरत इमारतों के नक्शे पेश किए, लेकिन इन नक्शों में कोई भी नक्शा मुमताज महल को पसंद नहीं आया। उस इमारत के हूबहू नहीं जा रहा था जो इमारत मुमताज महल ने ख्वाब में देखी थी। तो इसको कोई भी नक्शा में पसंद नहीं आया, इससे कोई नक्शा पसंद ना आया, तो कोई भी नक्शा इन इंजीनियरों का दिया हुआ इसको पसंद नहीं आया। आखिर में एक फकीर एक नक्शा बनाकर था। तो आखिर में क्या हो गया कि एक फकीर ने, एक गरीब इंसान ने, या हम कहेंगे फकीर के यहाँ पर दो मतलब निकल सकते हैं, एक हो गया गरीब और दूसरा हो गया खुदापरस्त, बुजुर्ग जिसको बोलते हैं। तो आखिर में एक फकीर ने, एक बुजुर्ग ने एक नक्शा बनाकर लाया और शाही जहां के दरबार में पेश किया। मुमताज महल ने उसे देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी और कहने लगी। और जब मुमताज महल ने, जब शाहजहां की बीवी ने यह नक्शा देखा, फकीर का नक्शा देखा, तो वो खुशी के मारे उछलने लगी, यानी कि वो हद से ज्यादा खुश हो गई और इतनी खुश हो गई कि वो कूदने लगी, चिल्लाने लगी। जैसे कि कोई हद से ज्यादा खुश होता है तो वो फिर उछलता है, कूदता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो ये भी ऐसे ही खुशी की वजह से उछल पड़ी, क्योंकि उसको जो ये नक्शा मिला ये बिल्कुल इस इमारत जैसा था जो इमारत इस मुमताज महल ने ख्वाब में देखी थी। ये वही इमारत है जिसको मेरी आंखें ढूंढती थी। और जब मुमताज महल ने ये नक्शा देखा तो उसने चीख कर कहा कि बिल्कुल ये वही इमारत है जिसको मेरी आंखें ढूंढती थी, जिसको मैं ढूंढती थी, यानी कि जो इमारत मैंने ख्वाब में देखी थी। और इसी किस्म की इमारत मैं अपने लिए बनवाना चाहती हूँ। बादशाह ने फकीर को अमीर कर दिया। और जो बादशाह था, कौन सा बादशाह? ये जो शाहजहां था, जब उसकी बीवी की फरमाइश पूरी हो गई, यानी कि उसकी बीवी को अपने मन के मुताबिक ये नक्शा मिल गया, तो उसने इस फकीर को अमीर कर दिया। उसने इस फकीर को बहुत सारी दौलत दे दी और वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया। और इसी नक्शे के मुताबिक ताजमहल तैयार करवाया। और फिर इसी नक्शे के मुताबिक जो नक्शा इस फकीर ने दे दिया, जिस नक्शे को इस मुमताज महल ने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया कि बिल्कुल इसी किस्म की इमारत मैंने ख्वाब में देखी, तो फिर शाहजहां ने इसी नक्शे के मुताबिक महल तैयार करवाया, यानी कि ताजमहल को तैयार बनवाना शुरू किया। खैर ये किस्सा तो बड़े बूढ़ों की जुबानी सुनने में आया है। तारीख की किताबों में यूं लिखा है कि जब 14 बरस के सुहाग के बाद मुमताज महल का आखिरी वक्त करीब आया, तो उसने शाहजहां से वसीयत की कि मेरा मकबरा ऐसा बनवाना जिससे मेरा नाम चले। है ये तो एक किस्सा है इस ताजमहल इमारत के बारे में कि क्यों इसको बनाया गया, किसकी फरमाइश पर बनाया गया और नक्शा उसका देने वाला कौन था, ये तो एक किस्सा है। लेकिन ये तो बड़ों बुजुर्गों की जुबानी से एक किस्सा है, इसमें कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है कि ये किस्सा सच है। लेकिन जो तारीखी किताबों में लिखा गया है, जो हिस्ट्री में लिखा गया है कि ये ताजमहल कैसे बनाया गया है, उसके बारे में तारीखी किताबों में यह लिखा गया है कि जब 14 बरस के सुहाग के बाद मुमताज महल का आखिरी वक्त करीब आया, तो उसने शाहजहां से वसीयत की कि मेरा मकबरा ऐसा बनवाना जिससे मेरा नाम चले। तो तारीख की किताबों में यह लिखा गया है कि जब मुमताज महल और शाहजहां को आपस में शादी के बाद 14 साल हो गए, और अब ये जो मुमताज महल थी, शाहजहां की बीवी थी, उसको अब आखिरी वक्त आ गया, यानी कि करीबुल मरग थी,
اس کا موت نزدیک آنے لگا، اس کی موت قریب آ گئی، تو اس نے اپنے شوہر شاہجہاں سے وصیت کی، اس سے ایک وعدہ لے لیا کہ میرا مقبرہ، میری قبر یعنی کہ جس میں مجھے دفن کیا جائے گا، میری قبر پر ایک ایسی عمارت بنوانا جس سے میرا نام چلے، جس کی وجہ سے میں رہتی دنیا تک مشہور رہوں، جس کی وجہ سے میں رہتی دنیا تک میرا نام باقی رہے۔ شاہ جہاں نے اس کی یہ وصیت یوں پوری کی کہ تاج محل جیسی بے نظیر عمارت کھڑی کرے۔ تو شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی یہ وصیت پوری کی، اس طرح سے یوں پوری کی کا مطلب ہو گیا کہ اس طرح سے پوری کی کہ اس نے ایک بے مثال، بے نظیر کا مطلب ہوگا بے مثال، میچ لیس، جس کا مقابلہ نہ کیا جائے، جس کا کہیں اور مقابلہ نہیں ہوگا، تو شاہ جہاں نے ایک بے مثال عمارت، تاج محل جیسی ایک بے مثال عمارت اپنی بیوی کی فرمائش کے مطابق، اپنی بیوی کی وصیت کے مطابق بنوا لی۔ تو کیسے بنوا لی؟ تمام ہندوستان، ایران، عرب اور ترکستان سے بڑے بڑے انجینئر